दंडोत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडो प्रणाम। हरे कृष्णा, विमला माता जी दंडोत। सबका स्वागत है टू द डेली 9 PM क्लास। वी विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes, true. Today is Bhagavad Gita. Which verse? Acha. Before we start, if Sudhanshu Prabhu is there, he had a question. We can take if he's not. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। Hey bro, Hare Krishna. Yes, you can ask your question. Prabhu ji, my question was, yesterday we studied the shlok in which the shloka it is like कि भगवान cosmic manifestation से पहले कुछ भी नहीं था. The only Lord was there and no phenomena was there, and and afterwards is also the same. And Prabhuji, in Bhagavad Gita chapter 2 we studied कि the soul, we are the part and parcels, and we are eternally living. We are eternal, means the Lord and the all the parts and parcels also. So Prabhuji, how to understand this thing? I mean, one side, Lord is saying कि before the creation, before the cosmic manifestation, nothing was there, only I was there. So when the Lord is saying nothing was there, what is in that word aham ivatam avagre? What he is saying is that all that information Krishna is basically referring to the material world. Krishna is saying ये material world में कुछ भी नहीं था, मैं अकेला था, and अकेले था मतलब ये नहीं भगवान अकेले थे. भगवान is saying कि in this material world I was there, like in the Mahavishnu is alone in one sense, but उसके ऊपर जो 3/4 spiritual world है, उसमें तो जीव भर भर के हैं. वैकुंठ भगवान को जो 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो कभी नाश नहीं होता, वो इटरनली है. वहां से भर भर के जीवात्मा है, वहां पे नित्य लीला चल रहा है, वहां पे कोई कमी नहीं है. लेकिन अब जेल की बात जब आती है, भगवान कहते जेल क्रिएट करने से पहले मैं अकेला था, मैं जेल को क्रिएट करता हूँ, जेल को चलाता हूँ, जेल को वाइंड अप करता हूँ, और ऊपर जितने भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी जीवात्मा रिबल करना चाहेगा वो उसको यहाँ पे मैं भेजता हूँ. Does it Right. answer your question? Yes. Now, yes, got the point, Prabhuji. Right. God is basically saying, it is referred to the material world primarily. उसमें था ही नहीं, बाकी he's existing गोलोक के वजह से he's existing eternally in the spiritual world. ठीक है? गुरुजी, एक क्वेश्चन है इसमें कि when हाँ. at that time when the jail was not there, but in the Golok the entire means Lord Krishna was there, and all his leelas, pastimes were there. So were we there, like in the form of souls? Were we there with him? Yes, Prabhu. Okay. We were there. उसको समझाने की सिंपल है. जेल में कोई नया व्यक्ति क्रिएट के नहीं आ जाता है, वो पूना से ही कोई व्यक्ति को खींच के जेल में लेके जाते हैं. ये जेल उदाहरण बहुत ही सिंपल है. It is one of the most brilliant explanation by Srila Prabhupada. Why he is so famous is that he takes subjects like this and उसको analogy इतना powerful देते हैं. आप एक 10 साल के बच्चों को भी समझा सकते हैं कि the question you can answer. You can explain to him that how the material world is like a jail and it only has few people, majority exist in the spiritual world, and your question also that there yes, we existed in the city of Pune, इसी में से फिर जेल में किसी को धक्का मारा जाता है. Yes, true. Is it okay, Prabhu? Yes, absolutely. चलेगा. तो today's verse is, Prabhu? We had covered till 3.17. हाँ, तो अब देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे जो
ऑप्शंस दे रहे थे भगवान, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। तो अर्जुन का ये क्वेश्चन था लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, उसमें हम लोग गए थे और वहां पे भगवान कहते हैं ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन क्या था, योगिनम। योगिना। Yeah. योग, ये दोनों ऑप्शन में तो भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ज्ञान मार्ग से जो है, जो फिलोसफिकल मार्ग है वहां से आएगा, दूसरे डायरेक्टली मेरा एक्शन कर्म करके भक्ति करके आएगा। अब अर्जुन का सवाल ये है, और इसका भी मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ 17 में। आज का जो श्लोक 17 है, इसका थोड़ा लिंक मैं अलग तरीके से देता हूँ, इन मॉडर्न कंटेक्स्ट में देता हूँ। आप देखिए, भगवान कहते हैं कि इसमें भी अगर अर्जुन कहेंगे ठीक है, दैट इज फाइन, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, बट क्या ऐसे भी लोग नहीं है इस दुनिया में जो डायरेक्टली ज्ञान मार्ग में या फिर डायरेक्टली संन्यास लेके दे कैन रीच यू? भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर दो मार्ग है तो अर्जुन के सवालों से, अरे दो मार्ग में आप एक ही ऑप्शन मुझे बता रहे हो, ठीक है, मुझे तो आपने कहा कि यज्ञ करना चाहिए, आपने क्लियर कट कहा, कृष्ण ने 3 डॉट लगभग 4 चौथा श्लोक में भगवान बार बार कहता, अरे नहीं कर्म करो, नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम्हारा नियत कर्म करो। शरीर कर्म कर नहीं करो तो शरीर यात्रा भी, शरीर भी नहीं चला पाओगे, ढोंगी सन्यासी बनोगे और स्त्री के बारे में सोचोगे, इससे अच्छा तुम छोटा सा कर्मयोग शुरू करो। तो भगवान ने पावरफुल पंच दिया अर्जुन को, तुम तो क्या रिनाउंसिएशन की, सन्यास की बात की मत करो, तुम कर्म करते रहो। अर्जुन के मन में सवाल है कि ठीक है, अगर मैं कर्म ही करूं तो आपने दो ऑप्शन क्यों बताया फिर 3.3 में? और दूसरा व्यक्ति ऐसे कोई हो ही नहीं सकता है क्या? अगर हो ही नहीं सकता फिर आप दो ऑप्शन क्यों दे? वहां पे अर्जुन भगवान ने कहा कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार के लोग हैं जो आज सेल्फ रियलाइज करते हैं, अपने में आत्मा हो शरीर नहीं रियलाइज करते हैं। तो अर्जुन पूछेगा, अगर अर्जुन अगर पूछते हैं कि ठीक है फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, वो व्यक्ति का क्या हो? वैसे वो कैटेगरी नहीं है कि भगवान की नहीं, वो कैटेगरी वाला व्यक्ति है, हो सकता है। अब 17 में और 18 में भगवान उसको क्लैरिफाई करते हैं। 17 और 18 में आज के श्लोक में, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आप भगवान कहते हैं, बट वन फॉर हु हैज टेकन प्लेजर इन द सेल्फ, whose human life is one of self realization and who is satisfied in the self only, fully satisfied, for him there is no duty। तो भगवान कहते हैं, अगर अर्जुन कहेंगे अरे ये बहुत सारे बाबा लोग हैं, अभी कुंभ में हमने देखा है, ये सारे लोग कर्म नहीं करते हैं, कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, कोई ठेला नहीं चला रहा है, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये सीधा संन्यास लिए, तो आप क्या, दे विल नॉट अटेन यू? भगवान कहते हैं हाँ, वो दैट पॉइंट कुंभ मेला को थोड़ा ये लेके इसको हम चर्चा कर सकते हैं, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कुंभ मेला। नाउ द वे टू अंडरस्टैंड इज दैट भगवान कहते उसके लिए न कार्यम विद्यते, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कर्म नहीं करेगा तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि भगवान अर्जुन को कहा कि नियतम कुरु, नियतम कुरु, तुम्हारे नियत कर्म में, तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम। 3 डॉट आई थिंक 1 सेकंड 3.8 में, या नियतम कुरु कर्मत्व, नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम्हारा नियत कर्म करो बॉस, ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, नियतम प्रिस्क्राइब्ड, आपको जो ड्यूटी शास्त्र में प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय के कर्म कर्म करो, आप डोंट गिव इट अप। तो आप बताइए, ये जितने भी साधु हैं जो कुंभ में हैं काफी सारे, ये तो कुछ कर्म भी नहीं करते हैं। तो ये फिर, ये अगर कर्म नहीं करते हैं तो उसका कंसीक्वेंस क्या है?
इफ दे डोंट डू एनी कर्म, मान लो कि उल्टा तरीके लेके जाते हो, चलिए आप दिस चैप्टर सो नाइस, इतना सारा इस चैप्टर में सीखने को मिलता है। जितना भी पढ़ता हूँ, whenever I read this, I'm like, वहां पर ये क्या है भगवान इस श्लोक में, और इतना में दुनिया से भी बहुत सारा सीखने कनेक्टिविटी मिलता है। आप देखिए, विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, कुंभार है, गांव को उदाहरण लेते हैं कि गांव ही वो सेटअप है जहां भगवान ने पूरा सेटअप गांव से बनाया है, शहरों में सेटअप नहीं है। गांव में सेटअप, मान लो कि मैं कुंभार हूं, है ना, मैंने आई मेक पॉट्स, और मान लो कि ऐसे मैंने आज बहुत सारे पॉट्स बेच के मेरे पास 100 रुपए आए हैं। उस 100 रुपए में से भगवान कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म करने से तुम यज्ञ करने के लिए कर्म करने की जरूरत है। तो कर्म मैंने किया, मैंने पॉट भेजे हैं, 100 रुपए हाथ में आ गए। मैं 100 रुपए से क्या कर सकता हूं? 10 रुपए मार्केट से मैंने यज्ञ के सामान लेके आए, घी लेके आया, फल लेके आया, फूल लेके आया, अपने घर में यज्ञ करने मुझे आता है, तो मैंने सारा सामग्री करके यज्ञ किया है। देवता संतुष्ट हो गए कि अरे विजय गोपी ने 100 रुपए आज कमाए हैं मटका बेच के, तो उसमें से 100 रुपए उन्होंने 10 रुपए के यज्ञ करवाए। भगवान ने कहते परफेक्ट। अब इससे क्या होगा? कर्म करके मैंने यज्ञ किया है, और यज्ञ करने से क्या होगा? Demigods बारिश होगी, satisfied. Demigods will be satisfied. Demigods satisfied. बारिश होगा, और बारिश होने से अन्न मिलेगा। उसका फ्लो देखिए, वो बहुत जबरदस्त चक्र है। फूड कम्स फ्रॉम रेन, रेन कम्स फ्रॉम यज्ञ, यज्ञ कम्स फ्रॉम कर्म। तो मैंने कर्म किया, तो उस पैसे से मैंने यज्ञ भी कर लिया घर में ही, या फिर मैंने ब्राह्मण को बुलाया, गांव को जो ब्राह्मण पुजारी है, आइए हमारे घर में यज्ञ करिए, तो उसने 10 रुपए के यज्ञ करके चला गया। तो यज्ञ मैंने किया, कर्म करने से 10 रुपए मिले, 10 रुपए मिले से यज्ञ किया, यज्ञ करने से बारिश हुआ है, देवता संतुष्ट होकर बारिश दे दिए, और बारिश हो गई तो अन्न मिला है। अब अर्जुन का क्वेश्चन ये है, अरे ये कुंभ में ये लोग कौन से कर्म करते हैं? ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, काम नहीं करने का। अर्जुन का क्वेश्चन क्या है? मान लो कि वो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा, तो 10 रुपए के यज्ञ में कैसे करेगा? अब जितने भी साधु बाबा लोग आए महाकुंभ मेला में, ये यज्ञ भी करना चाहेंगे तो पैसा लगता है, और लेकिन वो कर्म नहीं करते हैं। तो भगवान कहते कि उनका फिर क्या, क्या दे आर आउट ऑफ द चक्र? भगवान कहते नहीं, भगवान कहते ऐसी बात नहीं अर्जुन, ऐसे व्यक्तियों के लिए यज्ञ करना आवश्यक नहीं है। बट कैसे वो व्यक्ति है? भगवान कहते हैं उसका क्राइटेरिया एकदम तगड़ा देते हैं। भगवान कहते हैं यस्तु यस्तु आत्मरति ही एव आत्म तृप्त आत्मनि एव संतुष्ट। भगवान कहते हैं अब अगर वो साधु है, पहले तो आत्मरति ही, वो अपने आप में पूरा संतुष्ट है, आत्म तृप्त, इल्यूमिनेटेड, आत्मनि आत्मनि एव संतुष्ट, परफेक्टली सिचुएटेड एंड सैटिस्फाइड। भगवान कहते अरे उसके लिए कोई 10 रुपए कमाने के लिए यज्ञ करने को वो कमाए? भगवान कहते नहीं, वो ऑलरेडी वो स्टेज पे है, वो डिवोशन लेवल पे आ गए, वो मेरे से वो पूरा कंपैक्ट है, ऐसे बंधा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के भगवान कह रहे हैं अब नहीं है, उसके लिए कोई यज्ञ नहीं है। अब इसका हम कुंभ से सीख सकते हैं। अब इसका उदाहरण शास्त्र से एक हमको मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? एक व्यक्ति मिलता है, उनका नाम है सुखदेव गोस्वामी। He was also 16 years old, 16 to 20 years के थे सुखदेव गोस्वामी, संन्यास लिए। अब संन्यास लेके सुखदेव गोस्वामी कुछ काम करने नहीं जा रहे हैं, गाय चराने नहीं जा रहे हैं, या फिर ये कुछ गांव में कुछ खेती नहीं करते हैं। पैसा कमाने के लिए सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं। There is no work for him. तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कहता अरे
तो कोई कहेगा अच्छा सुखदेव गोस्वामी अगर कार्य नहीं करते हैं और फिर दिन में हमको यज्ञ करना ही है, अग्नि प्रज्वलित करना है, सुखदेव गोस्वामी के पास 5 रुपए भी नहीं है, तो फिर यज्ञ का सामान कैसे लेके आएंगे? भगवान कहते अरे से उसके लिए यज्ञ नहीं है, वो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है, वो ऑलरेडी हम में वो लगा है, इज ऑलरेडी सेल्फ सेटिस्फाइड इन मी, उसके लिए कोई देयर इज नो यज्ञ फॉर हिम, उसके लिए ये यज्ञ नहीं है, कोई काम भी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सबसे बेस्ट यज्ञ क्या है? यज्ञ का मंत्र, यज्ञ का मीनिंग है कृष्ण को संतुष्ट करना, वो ऑलरेडी कर रहा है। आत्मन ही आत्मन तुष्ट है, अंदर जाके अंदर में परमात्मा के रूप में हूं, वो मुझ में रमता है ऑलरेडी। फॉर हिम देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड वर्क। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ पीपल लाइक होम, फॉर लाइक सुखदेव गोस्वामी। अर्जुन पूछेंगे आपने 2 कैटेगरी कहा, तो ये कि मुझे तो बार बार फोर्स करो कर्म करो, लेकिन वो कैटेगरी बोले कौन है? भगवान कहते अरे वो कैटेगरी अलग लेवल, एक्सॉल्टेड डिवोटीज है, तुम वो लेवल पे हो क्या? तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्या है? देखो तुम ये लेवल पे हो क्या कि आत्मन ये आत्मन तृप्त, वो लेवल पे नहीं हो तो जंप मत करो। ये दोनों मार्ग ही अपने भगवान कहते हैं कि गारंटी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं कि कंपलसरी एक कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए सुखदेव गोस्वामी। अब ठीक विपरीत उसमें उसी में देखिए, एक आईआईटी बाबा करके आपके कुंभ मेला में उन्होंने बहुत सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, ये भी कुछ 22-25 साल में सन्यास ले लिए हैं, सुखदेव गोस्वामी 22-25 साल में सन्यास लिए हैं। अब भगवान वो एग्जैक्टली इसी को यहाँ पे कहते हैं, शुरुआत के श्लोकों में भगवान कहते हैं उसने अगर सन्यास ले लिया उसने, लेकिन रिक्वायर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट नहीं था आईआईटी बाबा ने। वो अच्छा लड़का है, आई डोंट थिंक इज बैड पर्सन, रिनाउंस आईआईटी, मतलब त्याग तो है ना, कौन छोड़ेगा? तो फॉर वॉट एवर रीजंस उसने कहा कि मेरे बचपन बहुत ट्रॉमेटिक था, मेरे घर में इतना झगड़ा होता था, मेंटल ट्रबल्स था, तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ लेके मैं पीसफुल होना चाहता था, तो ही गिव अप, विच इज वेरी गुड। बट देन जैसे भगवान यीशु इस चैप्टर के शुरुआत में कहा, अरे अर्जुन तुम सोच रहे हो कि सिर्फ संन्यास लेने से सिद्धि मिल जाएगा ना, तुम्हारा यही प्लान है ना कि नहीं युद्ध करूंगा मैं संन्यास ले लूंगा। भगवान ने कहा देखो ये संन्यास ले चुका है आईआईटी बाबा। But then Krishna is saying the required purification of heart was not there. संन्यास लेने से पहले हार्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट ये बहुत क्रूशियल है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन होने से तब जाके संन्यास को हेल्प करेगा, इनर ट्रांसफॉर्मेशन था ही नहीं। तो फिर जब इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले बने संन्यास बन जाते हैं, फिर क्या होता है? तो भगवान ने कहते हैं न सिद्धि नहीं मिला आईआईटी बाबा को। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वो भी 21 साल के हैं, अब इन्होंने भी संन्यास लिया है, लेकिन इनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन पहले से था, इसलिए आज तक सुखदेव गोस्वामी के लोग हम जैसे हम पागल है सुखदेव गोस्वामी के पीछे। भाई ही हैड द इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर ही टुक संन्यास। कोई कहेगा प्रभु क्या प्रूफ है? यही प्रूफ है। व्यासदेव खुद भागवत में लिखते हैं कि ये मेरा लड़का है, ये बिना कपड़े के एक नदी के बाजू में से जा रहा है कि जितने भी स्त्रियां हैं उन्होंने कुछ देर नोटिस भी नहीं किया, जबकि वो यंग लड़कियां हैं, ये यंग लड़का है। लेकिन जब मैं चला गया तो उन्होंने अपने कपड़े, अपने शरीर से अपने कपड़े ढकना शुरू कर दिए। सुखदेव गोस्वामी इतना हैंडसम, उनके शरीर का वर्णन किया गया भागवत में। क्यों? वो इंटरनल ट्रांसफॉर्म्ड व्यक्ति था। आत्मन ये आत्मा यस्वात्म रतिरेव स्यात्, आत्म तृप्त स आत्म तृप्ति आत्मन एवं संतुष्ट, वो कैटेगरी वो लेवल पे सुखदेव गोस्वामी थे। इसलिए सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इतना प्रॉब्लम नहीं था कि अरे वो जा भी रहे तो बिना कपड़े पहने, फिर भी कोई कंफ्रंटेशन नहीं है। और यहाँ पे देखिए आईआईटी बाबा के केस में वो कहीं ना कहीं he ended up creating more controversy only, कहीं ना कहीं एक टीवी शो पे उन्होंने ये किया, वो काफी सारा कंट्रोवर्सी क्यों। दैट पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड। भगवान जो पॉइंट बताते हैं ना कि संन्यास लेना, भगवान कहते अर्जुन को लग रहा था अरे इससे अच्छा मैं संन्यास लेता। भगवान कहते तुमको क्या लगता है संन्यास लेने से सिद्धि मिल जाएगी? Did he attain? No, आईआईटी बाबा could not. कृष्ण इज सेइंग अगर तुम उस लेवल पे हो अर्जुन तो लो संन्यास, लेकिन तुम नहीं हो ना तो बेटर कि तुम क्षत्रिय हो, तुम नियतम कुरु कर्मत्वम, तुमने कर्म करते रहो,
why both it cannot see A, B, not just be so easily is that ultimately path में we need purification of heart. आत्म शुद्ध होना चाहिए. आत्मशुद्धि मतलब क्या? आत्मशुद्धि मतलब अहंकार छूटना, वैराग्य उत्पन्न होना, भगवान के प्रति आसक्ति जनरेट होना, काम वासना खत्म होना, ये सारे चीज शुद्ध अंदर से शुद्ध होने के बाद तब जाके बेसिकली कृष्ण सिंह अरे तुम सोसाइटी में कुछ कर पाओगे. एंड इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन में इतना कड़क नियम है सन्यास देने का. 50-50 वैसे पहले तो किसी को सन्यास ही नहीं दे रहे हैं और लंबा से इतना लंबा वेटिंग लिस्ट है. आप देखिए राधेश्याम प्रभु 30 साल से इस्कॉन में, उनको सन्यास नहीं दिया अभी तक. Why ISKCON is ensuring that की required transformation comes in a person, internal transformation है, उसको सन्यास दे दो, वो जाके 1000 लोगों को उद्धार करेगा. So this is the context Krishna is saying, यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः. तुम वो लेवल पे नहीं हो अर्जुन, बेटर कि तुम काम करते रहो बॉस. अब कर्मयोग में एक चीज क्या होगा, सी ये सारा लिंक कितना अच्छा है देखिए. और दिस क्वेश्चन ऑफ फल जो है, व्यक्ति फल का अर्पण भगवान को क्यों करना चाहिए, ये सारा लिंक्ड कैसे है. अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं भगवान को 50 रुपए देता हूं तो एक चीज मेरे हृदय में उत्पन्न होता है, क्या है? वैराग्य. इतना साइंटिफिक है. द पॉइंट ऑफ गिविंग द फॉलो टू भगवान कहता है ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है. तुमको लगता है कि इस्कॉन वाले पैसे कमाने के लिए ये रूल बताते हैं 10% का. It is not like that. It's very scientific. Krishna is saying, how will you develop detachment in this world? By giving up the fruit. नहीं तुमको लगता है मैंने 1 लाख कमाया इसमें से इतना इस्कॉन को देना पड़ेगा. यू आर अटैच्ड. भगवान ने कहता अटैच्ड तो अटैच्ड ही हो, फिर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? सो कृष्ण अर्जुन भगवान कहते तुम गृहस्थ हो, ये सारी चीज जितने भी गृहस्थ आश्रम में नियम है ना, यज्ञ दान तप, इन चीजों को पालन करते रहो. करते करते जब इतना दान दोगे फिर अपने आप तुम्हारे में क्या होगा? अनासक्ति वैराग्य उत्पन्न होगा. और जो अहंकार है, इसी में आएगा श्लोक. भगवान डांटते हैं जबरदस्त श्लोक में. आगे चलिए एक श्लोक में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे करवाणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते. कोई का प्रभु ऐसे क्यों होता है कि फल हम आपको दे नहीं पाते हैं? भगवान कहते विमूढ़ात करता हम, वो सोचता है कि वही करता है ना, विमूढ़ात्मा, इसलिए मुझे फल नहीं दे पाता है. नहीं दे पाता है तो हृदय शुद्ध नहीं होगा. हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हाउ इंटरनली प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो क्या सन्यास क्या लेंगे? तो दिस वर्स 17 and 18 बेसिकली कृष्ण इज सेइंग अरे उस व्यक्ति के लिए ये कोई काम में भी नहीं है. ये काम करेगा 10 रुपए कमाएगा, फिर ये भगवान कहते हैं ही इज ए डिफरेंट लेवल. 18 में नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः. A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor he has any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. भगवान कहते अरे ऐसे जो व्यक्ति है उसको कोई अपना ड्यूटी करके कोई पर्पस नहीं फुलफिल करना है. सुखदेव गोस्वामी की ये फुलफिल नहीं करना है कि देखो हमको शादी करना है, पैसे इकट्ठा करना है, बेटी की शादी करना है. शादी ही नहीं किया तो ही हैज नो पर्पस टू फुलफिल. या फिर वो कहेगा ठीक है प्रभु जी गाय की रक्षा करना चाहिए, नहीं करेगा गाय की रक्षा. He has no duties to fulfill. He ultimately is gone beyond varnashram. अगर अच्छा दूसरा पर्पज कृष्ण से नॉर ही हैज एनी रीजन नॉट टू परफॉर्म सच वर्क. ऐसे भी नहीं कि कुछ नहीं करेगा, करना है तो करेगा. अब इसको चल के भगवान तुरंत एक व्यक्ति का नाम घुसाते हैं, आगे चल के जनक महाराज को उदाहरण देते हैं.
वो जनक महाराज को भी कुछ काम करने की जरूरत नहीं था, फिर भी अंततः ये दो श्लोक में भगवान कहता है फिर भी ऐसे स्टेज पर भी व्यक्ति कोई होता है जिसको वो स्टेज पे कि वो आत्मन वो लेवल पे है, ही इज फुल्ली डिवोटी एंड ही डजंट नीड टू डू आल्सो, फिर भी उस व्यक्ति को काम करना चाहिए टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स इन दिस सोसाइटी। जैसे भगवान कहते हैं जैसे अर्जुन जनक महाराज थे, वो भी सुखदेव गोस्वामी लेवल पे ही थे, कोई काम करने की जरूरत नहीं, फिर भी उनने पूरा राज संभाला, so that to guide people. In this way, in many unambiguous terms, Krishna is saying, better in this world, you work, the path of action is far more easy, far more superior, because it naturally purifies a person, the path of action. So yes, 18 or 17 or 18 का ये था। Yes, any किसका question है before we conclude 19th? 19th में ले सकते हैं, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। वाओ, कितना अद्भुत श्लोक है। भगवान कहते हैं तस्माद, देयरफॉर, क्या देयरफॉर? असक्तः सततम, आसक्ति के बिना रहो। क्या आसक्ति के बिना क्या करना चाहिए? कार्यम कर्म समाचर। अच्छा, फिर कर्म क्यों करना चाहिए? कोई के आसक्त रहो, फल की चिंता मत करो, फल देखो तो हमको दे दो, फिर वाई शुड वी इवन वर्क इन दिस वर्ल्ड? भगवान कहते हैं यू वर्क कार्यम, है ना, यू वर्क एज ए ड्यूटी। लोग कहते हैं कहाँ गए थे, नहीं हमारे पति तो ड्यूटी गए। भगवान कहते ड्यूटी के तौर पे तुम्हारा कर्म करो। ठीक में से अरे आप कहते हो हम 100 रुपए कमाएंगे, 50 रुपए भगवान को ही देंगे, फिर हम क्यों कर्म करें? इतना हमको मिलता भी नहीं है, तो वो 50 देने के लिए क्यों इतना मेहनत करते? भगवान कहते हैं एज ए ड्यूटी यू डू इट। ऐसे ड्यूटी करोगे तो करते करते तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, बिकॉज यू आर नाउ गिविंग द रिजल्ट। कृष्ण भगवान कहते तुम्हारा ड्यूटी समझ के करो भाई, और तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, वो इंपॉर्टेंट है। हृदय शुद्ध होने से ही तब यू रियलाइज कि तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा नहीं हो, और मुझे पकड़ोगे। वो हो करंटली वो हो क्यों नहीं पा रहा है कि हम आत्मा है परमात्मा है? जी हृदय शुद्ध है ही नहीं है। हृदय शुद्ध के भगवान कहते हैं कार्यम कर्म समाचार, कर्म करते रहो भाई, लेकिन कैसे? कार्य एज ड्यूटी, असक्तो ही आचरण कर्म, अनअटैच्ड परफॉर्म योर वर्क परमाप्नोति पुरुषः। इस तरह से उस काम में आसक्ति के बिना, काम में आसक्ति के बिना मतलब ये नहीं काम नहीं करना है, काम में आसक्ति के मतलब ये कि उस फल से अनासक्त रहना, फल भगवान को देना, ये लीजिए फल। एंड कृष्ण सिंह ये करने से क्या होगा? भगवान कहते परमाप्नोति पुरुषः, भगवान कहते हैं परम पुरुष मैं हूं, मुझे पालोगे। देखिए ये कितना साइंटिफिक प्रोसेस है, that we need to act in this world, and the phala we get, we need to give it to Krishna. See how clear cut Bhagavad, param acharan param apnoti purushah asakto hi acharan karma। आसक्ति के बिना, किसके प्रति आसक्ति? फल के प्रति आसक्ति है ना, और कुछ है ही नहीं। स्टॉप हियर। किसी को सवाल है आज तो 3 श्लोकों में? यस प्रभादी प्रगुड। गुरुदेव एक मतलब जस्ट एक रियलाइजेशन है, यू प्लीज करेक्ट मी। जैसे 3.8 में भगवान ने बताया कि नियतम कुरु कर्मः, तो मतलब भगवान कर्म करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। अगर भगवान के मूड को देखा जाए तो इन द 3rd चैप्टर ही स्टार्टेड विद लाइक फर्स्टली गिविंग द एनालॉजी कि कैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट चलता है, जैसे आपने बताया, एंड फिर वो स्टार्टेड विद एनकरेजिंग टू डू कर्मा। व्हेन आई एम सेइंग कर्मा, इट इज द निष्काम कर्मा। सो फिर वो जब आते हैं इन द 17 एंड 18, फिर वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं अबाउट लाइक
a person. He's giving some characteristics like who is self-pleasure, takes pleasure in the self, whose human life is one of the self relation, who is satisfied in the self. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स देख के ऐसा लग रहा है कि वो जो भी होंगे वो भगवान के बहुत खुद के करीब के इंसान होंगे, जो कि भगवान के खुद के, क्योंकि भगवान इज ग्लोरी इन अ वे, लॉर्ड इज ग्लोरीफाइंग। तो क्या वो गुरु नहीं है? मतलब वो गुरु की बात नहीं कर रहे हैं क्या भगवान? वो गुरु के बारे में बात कर रहे हैं क्या? आर दीज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुरु? Not necessarily. Not necessarily. Guru can be one of them. But Krishna is not just saying he's a guru. Krishna is saying it can be any devotee. Bharat Maharaj उस category में थे. Before he fell down, Bharat Maharaj was in that category only. अब not before he fell down. ये जड़ भरत उस कैटेगरी में आते हैं. ओके, तो इस और वो भगवान के भक्त थे. अब he was behaving like a madman. लोग कहते हैं उसके खुद फैमिली करता था, कुछ करता नहीं है, कुछ करो, बिजनेस करो, खेती करो, लेकिन वो था डिफरेंट लेवल पे था. तो ही एंड so in that category any person who's basically has deep devotion to the Lord, Yasvatma, he is connected with the Lord, and a guru can come in that, and any devotee can also come in that, any person can come in that. Not necessarily it has to be guru, but can be in that level. Guru will definitely be in that level. गुरु उस कैटेगरी में आते ही हैं, इसलिए गुरु के बाद देखेंगे. अब जितने भी गुरु हैं इस्कॉन में, उनको भी कर्म नहीं है. उनको कोई ये नहीं पूछेगा अरे आप जॉब क्यों नहीं करते हैं. कृष्ण कह रहे वो नहीं करने वाला है, वो 18-19 कैटेगरी में आता है. दे आर ऑलरेडी सेल्फ सेटिस्फाइड. तो गुरुजी इसी पे एक क्वेश्चन है कि जो इसी एनालॉजी को अगर 3.8 में लगाएं, जहाँ पे भगवान कर्म करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, तो हम वो जो निष्काम कर्म अगर इन्हीं को सर्व करने के लिए लगाएं तो दैट विल सर्व द पर्पस ना. जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, 100 रुपए में 10 रुपए का मैंने हवन सामग्री किया और यज्ञ किया टू सेटिस्फाई द डेमीगॉड. तो इज इट इक्विवेलेंट कि अगर मैं 100 रुपए में से 10 रुपए मैं इन्हीं को सर्व करने में लगाऊं? क्योंकि ये तो कहीं पे भी लगाओ, कहीं पे भी लगाओ. पॉइंट इज दैट भगवान कहते हैं एंड देन यू हैव टू सी योर आश्रम आल्सो. अगर गृहस्थ आश्रम में है, भगवान कहते हैं यस डेफिनेटली प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आल्सो मीन दैट वी टेक केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड यू आर सर्विंग. उसमें से 10 रुपए आपने, you are satisfying the atma truttis people, so that is sufficient. You can do that. That is also no need to basically light a fire and do yajna. इनका ही संतुष्टि करके ISKCON को देके that will basically suffice through. Yes, you can serve those persons falling in the atma trupti category. Yes. Okay. This answers. और किसी को सवाल है? Hare Krishna, Prabhuji. जी माता. Prabhuji, one question here is, for him there is no duty. So for those, the characteristics, Krishna said, for him there is no duty. So why they have come? So to do something, right? So they have come here to realize us or to teach something. So for him there is no duty. What does it actually means? What does it mean is, like I said, same thing. For a person like, see, for every person there is a prescribed duty mentioned in the Shastra. है ना? You are a Brahmana, भगवान कहते हैं तुमको यज्ञ करेंगे, यज्ञ याजन, है ना, यज्ञ याजन तब करेगा, वो पढ़ाई करेगा, ये सब तो ब्राह्मण के लिए भगवान कहे ये तुमको करना ही पड़ेगा. अब सुखदेव गोस्वामी को कोई ये नहीं कहेगा अरे आप यज्ञ क्यों नहीं करते हो, या फिर दूसरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्षत्रिय है आप कुछ राज करो. तो nobody can go and tell सुखदेव गोस्वामी कि आप ना तो ब्राह्मण के लिए हैं ना कुछ क्षत्रिय के काम करते हैं, ठीक है काम करो, कम से कम खेती करो. तो for him there is no prescribed duty in the Shastra Mata. He doesn't need to follow anything because the ultimate aim of Varnashrama sister to follow Varna and Ashrama is basically to please Krishna. To please Krishna. The goal of Varnashrama is to please Krishna and they are pleasing at such a level. भगवान कहते तो वो कुछ नहीं करने की जरूरत है. If he just lives on this planet also, no matter if he just walks on this planet, I will be happy and satisfied. उसको अब सामने से मैं दे दूंगा उसको जो भी चाहिए, तो वो खाएगा भी नहीं तो मैं ऑक्सीजन में पूरा प्रोटीन न्यूट्रिएंट डाल के उसके शरीर में मैं घुसाऊंगा, उसको
भी करने की भी जरूरत नहीं है. I will take care of people like him, like that. And why are they here? They are here to basically to show that one can fall in love with God. The society does need people of their caliber who are sold out to Krishna, who can love God. We cannot love God. People say, ऐसे कैसे कर सकते हैं? Because we only love ourselves. But then when you see people like Srudeva Goswami, Jada Bharat, you say, wow, these are people who love God and this is how they will live. To set an example for others to follow. That category of people is also there. That is where we need to be. Otherwise, without examples, we'll always think, yeah, the only example is that we just love ourselves, our bodies, and the bodies of our people connected. That is life. Krishna is saying, no, that will not give you the thing that you're looking for. You will not go back to Krishna like that. Does it answer your question, Mataji? Yes, Prabhuji. Yes, yes. Got it. Thank you. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की. Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. Thank you. Thank you. Pranam. Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. हरि बोल, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा, हरि बोल. Hare Krishna, Prabhuji.